these particular levels that are very strong. Okay, if the stock is reversed from 0.23 and 0.38 percentage levels, if 0.5 is not a Fibonacci level, first of all, it is just a psychological number. अगर आपको कोई चीज महंगा मिल रहा है, समझो कि 200 रुपए का पिज्जा अगर आपको 400 रुपए में मिल रहा है, सॉरी मतलब 100 रुपए का, like एक एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज 400 rupees pizza, and if it is available, some if any company announces, like say Domino's announces a discount that the pizza that was costing you 400 rupees now is available at 200 rupees. So what people tend to do is they jump on the offer that it is available at discount, and the more sales will be done by availing this, keeping this kind of offers. So such psychologies are also applicable in market. The one who missed this rally will eventually prepare itself to commit to this level, and they will start accumulating here, assuming that the further trend will continue from here only. So that is why there is a 50% level that acts as psychology, right? Psychological level and psychological support and resistance. Next, if the stock falls to 0.6 and 0.7 levels, the stock is said to be relatively weaker as compared to 2, 3 and 0.38 levels. Am I clear? Is Yeah. clear to everyone right now? Okay. So whenever you apply such kind of stuff, figure out which, like what level your stocks are doing. So for example, I'll apply it on Awful India, what exactly it is doing. So let's see first. Awful, the charts are open here. Okay, if you count this particular swing and this particular high. So as if you see here, I put the Fibonacci tool. I'm connecting from low. I see an uptrend here. Until this level, it was in uptrend. And as if you see, it has just taken a resistance, sorry, support from this 0.23 level. Okay. Imagine a stock giving a huge return from here. Say huge means that is, we can clearly say 740% return. But still there is no fall of like even 50% or maybe 30, or it's not even going below 0.23. That means people are still interested in that, right? There is someone bigger who is keeping a bigger target in this particular stock. Okay, got it? Even it's our Ziddi pattern too, है ना? स्टॉक ऊपर गया and consolidate कर रहा है. It's not falling, it is just retracing. Weak players will exit here and the smart players will enter here, and we can see the volumes are all coming in. Okay, next, as if we see the trend is very strong on a monthly time frame, we'll again go with the daily and weekly. Yes, गोपाल भाई, आपका डाउट क्या था बताइए. मेरा डाउट ये था कि जो मेरा it is showing that 1613 is its resistance. Is it or not? Am I correct on that or not? I just want to From know. what level you did drawing, I don't know. I did on daily basis. Just I took a swing, one swing. These two. जो कि डेली बेसिस में एक स्विंग जो है वो लिया था, लोअर और अपर. जो आपने पॉइंटर रखा हुआ है वो और उसका नीचे ऐसे ले लीजिए. जी हाँ, वहां से उसके नीचे. Okay. So you see this as a swing high low. Okay. Yeah. So this might take as a resistance, but if it gets taken out, we might see a bigger move upside. और अब ये Yeah, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट का जो ये जो फॉल था, ट्रेंड डाउन था यहाँ पे, ठीक है. हम जस्ट जी इसका जी. देख रहे हैं कि अगर यहाँ से ये रिवर्स होता तो बहुत नीचे जाता, यहाँ से भी रिवर्स होता तो नीचे जाता बहुत. बट अगर आप देखो तो तीनों, मतलब ये चारों लेवल को इनवैलिडेट करके ऊपर चला गया था 0.1 के ऊपर. तो आइडियली इट इज सेड टू बी वीकर. Bears were weaker here and the trend is strong now on upside. Okay, so ideally we see Yeah. a good move upside, right? Now what we'll see is the bigger retracement we'll see. If you see, this was a bigger correction here, so I'll connect these 2 points, one and these two, because after that there was no not a bigger low, right? There was no lower low on these points. So I'll say कि this was the correction and it was hovering in between this only, these two levels. So ideally it has came above this. So I'll expect
a bigger target, that is 2100 or something. Short term might be sideways or something, or it might retrace something like this, but might not go below this because it's a weekly breakout, right? So ideally, if you have bought the stock, the stop loss should be the breakout candle low. Actually, I have been holding this from long time, and my target is around 2100. So I was having a bit doubt on the resistance. That's why I raise a Just question. just keep holding. It's looking good. Don't worry. Yeah. It is in the right side of trend. Okay. Right? All right. Volumes Thank you. are also there. Trend is up. Weekly trend is up. Monthly trend is up. Daily is also up. So there is no negative as in. So you can keep holding. Even I'm holding KPIT also, Nice. but yeah, some fluctuation is going on in KPIT, but I'm still holding. Okay. थोड़ा साइडवेज होने का चांसेस है यहाँ पर It's a केपीआईटी का. monthly breakout. Weekly first breakout था. First to second. Ideally, the entry was here on the daily time frame. After a good base breakout, this is a base, right? Yeah, So this is a base. my Oh, buying is a bit high. here, It's around 1600 something. 16. Okay, around. Yeah. Okay, so you can keep holding here. Even it's not weak that much, but if it further goes below the buying candle low, you can exit. Okay, so there is some caution needed at that time. Even I'll recommend you to study about the results and the commentary beyond that, because after result it has started, it has done not performing very well. So ideally, someone was knowing here the results are supposed to become like very good, and if it further falls below your buying price or certain percentage, say 8% below your buying price, you shall exit Mm. from there. All right. Thank you. Yeah, welcome. Next, Sir, I have few questions. yes, Sir, can you open VLS Finance chart, sir? VLS. Okay. See, my problem is, sir, I'll buy at a very high price. I like this. I bought at 332, sir. Here, I Yeah, 332, sir. at this Uh, point or this point? no, this point, first one, this. Here. Yes, sir. Okay. So I sold at 302, sir. I think booking almost 10% loss. Hmm. Now stock is giving breakout. So all my examples are like this only, sir. One more example is Banco products. Banco. Now Yes, you sir. bought during the breakout. Yes, sir. Okay. Now stock almost fall around 100 rupees, sir. I bought around 783 something. My God. Now stock is trading around 680 something, sir. 690. Okay. Shall I say you have watched all the modules? Yes, sir. Okay. So in modules, there was one such line, and we have been giving a reminder to you all that before results, do not buy anything, even if it is looking very good, right? No doubt, Hmm. it's like second breakout, but what happens is that when the entire sector has been affected right now. So if you observe Nifty Auto, it's an auto ancillary stock, right? Yes, sir. Yes. So Nifty Auto has been affected from the fall, right? Hmm. It's the same structure in Banco, right? After Yes, sir. breakout, it fell. So there were no follow through volumes, sorry, follow through candles. After breakout, ideally one more candle should have been gone, or 10 Yes, MA sir. should have been worked very well, but it did not do anything. So these are the indications that there is something wrong with the auto sector, and even it's not looking good because it went like it closed below an open gap down, and it has also closed below the 50 MA. Previously, it never did that. So the sector is having some problem, some kind of problem. Maybe it will come in future or something. So Banco, I'll recommend, like, what advice you want on this? See, this VLS finance I already sold, sir. Hmm.
But now this I'm holding Banco products. I'm holding around 12,000 loss is there. In I think I bought around 1 lakh. Okay, it's a kind of penalty. Like it was a rule that you are not supposed to take any entries before the earnings, because if the earnings are negative from here, and if people start selling this particular stock, another dent of 10 to 20% you might face here, right? Results already came, sir. Results are average. Average. Yes, sir. Okay, but you bought ahead of the results. Even it was there in my radar too, but I did not Okay. buy. Okay. So I also saw there is a second breakout, but what I saw was ninth is having the result. So that is why I did not buy, and I stick to my rules, and I was awarded for that. But the thing is that uh, unless until there is like if you break the rule, you have to pay the penalty, right? So if you observe, like there is no selling volume as such now, but ideally we need to wait what the stock is doing from now. If you see, there is a it's 10 MA here on weekly, and like if you wish to exit, you should exit below this only. Now, as the move is here, continuous move is here, right? The one was been like यहाँ से buying आया और यहीं पे आके वापस रुक गया. So ideally nobody made money here, right? So ideally, shall I say there is some kind of dumping going here, like the one who are entered here and stuck here are trying to exit here, Okay. right? So ideally, if I say if it goes below this, you should exit. Goes below 100 EMA, sir. No, no, goes below this particular point, price point 663. Okay. Okay. Because I see it's below like 10 MA and 20 MA, and it is just being supported by 50 MA. So might be in medium term, might do some kind of good. But Sir, last candle is Pichku candle, na, sir. We sorry, cannot. last Last is candle. Pichku. Yes, Yeah. but instead of sitting in hope, I would have said that if you bought around 783, right? Yes, sir. So there are some negatives here. If you see, this was a buying candle here, and like what I try to do is I tend to decode the candles. Like if you see, it went up, it came down, again it went up, and again it went down. So it is a kind of this kind of pattern, right? Okay. So after breakout, it should have been gone like this only, but it had made Yes. a lower high, lower low. Whenever there is a double top pattern, double top could be like this, or it could be like this also. So when the midpoints are gone, ideally it's a point of selling. Okay. Take exit of 8 to 10%. Keep 8% as max your loss. Oh, okay, sir. Sir, what's your advice on VLS Finance, sir? Can you enter now? VLS Finance. Yes, sir. I'll not advise. You have just like learn enough, I guess. So there is no recommendation from my side to buy sell, because these are your own decisions. So you have to bear with it, right? Oh, now it is giving monthly breakout and all. Monthly breakout given, even on weekly, it's like after breakout it stood very like ziddy on daily. Ideally it's going against the market. So I'll say if you want to enter, keep the stop loss below the low, as the volumes are good and the candle is also good. So Sir, this ideally, stock is moving after my exit, sir. That is my worry. I agree, but it should not be like you should be afraid, because what I see might be not able to see, like you might not be able to see this. So ideally, what I see is this. If it continues to move 10% or maybe something, like it has done 40% move from here in this previous move, so might continue here also. But again, I'll say ki you should apply your own decisions here, not a recommendation any kind of. ये वीकली में कप एंड हैंडल ब्रेकआउट बन सकता है Sorry. वीकली में कप एंड हैंडल Hmm.
It's a VCP actually. It's a VCP, no? सर ये चार्ट मैंने कल ही ग्रुप में डाला था, शेयर किया था. Okay, nice. So My ideally, entry is wrong, sir. That is entry should be like if it crosses the high of this, it should be ideal entry. But I'll say ki, keep your position size little lower as the markets are not in correctly, not in good mood to go up or do something good. Might the market might go up for 1 or 2 days, maybe 300, 400 points. But again, the trend that was there is not really that strong. okay, Okay, sir. Sir, how many days we need to wait, sir, after buying a stock? Suppose for VLS Finance, I bought around 1 month ago. uh, So after my buying, it is continuously going down, sir. See, how many days I need to wait for that positive signal? 4 5 days max. 4 days. Okay. If it is not moving, I need to sell. Exit. Okay, sir. Even the Sir, same happened with me also in Tolbros Auto. Tolbros Auto, what happened? Like I'll share that too. I bought around this point because it was like previously, if you see, this was a hmm, VCP, proper VCP, and I like this was a good candle breakout given, and it went up. Like it's also an auto ancillary this stock. sector, right? So what Yes, sir. happened? It gave a break, like a hammer candle. Previous resistance were acting as support. I saw here because this is a candlestick pattern that is said to be hammer. It went up, but eventually it got rejected here. So ideally, my entry was around 359 odd levels. Okay, this was the my entry point here. And what happened? It like I saw the results also are coming. So I felt ki before result it might go like this. So I'll enjoy that way. And even on result, if it fails, like I'll bear the volatility. But it did not happen. It eventually went down and it came down. So I exited on this particular point, like I exited at here, this same level, and the stock went down. But I still don't regret on that because I don't want to like get stuck on in the consolidation zone right now. So this is consolidating right now. So I exited my and I invested somewhere else. One more stock, sir. J Kumar Infra. This is in my portfolio, sir. Around 8% loss. This is also entry point wrong, sir. Wrong entry points. What ideally you do to enter in a stock? Sir, I'll check RSI and these breakouts and all, sir. Fundamentals I'll check. No, I just say where you enter. Like, what are Time of your entry. criteria to enter? Because I guess you are not following the rules that have been taught in the course. Kind of, I like what I say is, are you facing any kind of disbelief about the course entry, like entry, or you are not able to believe in that there is something that is working in it? Only in some stocks it is not working, sir. But okay, I can sense that there is some kind of non-belief from your side in the uh, entry sides, right? So ideally, it should not go below this point. If it closes any day below this, you should take exit. Okay, it's just retracing, not falling. There is no Okay. negative here, but it's a result candle. So ideally, I'll wait. If it gets taken out, that means the sellers were very weak and it should go up. Again, it's a infra, right?
Yes, sir. Construction, sir. J Kumar Infra, RVNL, IRB, Ericon. These are the same companies that are not performing right now. Yes, sir. All are not performing. I guess किसी ने KNR construction भी भेजा है, Anup, I guess. So please discuss for KNR construction. KNR is so ideally after breakouts these are not performing because I guess Nifty Infra is also not performing. Hmm, it's little weak because the same part again gaps will not let you go up. After these two candles there was no follow through, right? And even it came down to previous resistance, so it should it's not a good sign for the sector itself. If it like consolidates and further moves up, then it should be a good sign, but uh, unless until it's below this the gap, I'll count it as negative. Sector itself is not performing and even the stocks are not, so we can witness that way. Okay, sir. Can you open this capacity infra chart, sir? Sir, can you take two questions? Yes, I guess deposit infra. Okay, Sir, what's your view on this stock, sir? results are there, avoid. Oh, I'll not prefer any stocks like during the result season I don't take any entries. Okay, next please, if the questions are over. सर एग्रीटेक इंडिया देखेंगे प्लीज. Agritech. आई बॉट इट ऑन द रिजल्ट डे. बजट जिस दिन हुआ था तो एग्रीकल्चर काफी फंडिंग मिली थी. इन लाइक जस्ट अ न्यूज के इन्फ्लुएंस में आई बॉट दिस स्टॉक, बट जस्ट आफ्टर बाइंग ये बस फॉल ही हो रहा है. बस ये एक तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो एक बहुत ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम है एज कंपेयर टू बाइंग, राइट? तो आप एक चीज देखो, आप कैंडल्स को इग्नोर कर दो, वॉल्यूम्स में देखो कि सेलर्स हैव कवर्ड 2 days बायर्स, और आपको वीकली पॉजिटिव दिख रहा है, बट वीकली में भी तो ये नेगेटिव साइन दिख रहा है एक, राइट? आपका बाइंग प्राइस क्या है? एक मिनट सर, इसमें मैं पूछना चाह रही हूँ क्या रिवर्सल आएगा कि मैं लॉस बुक कर दूँ? एक मिनट, मैं आई जस्ट शेयर माय बाइंग प्राइस. कितने प्राइस पे लिया है? 300 ऑन 300 आई बॉट इट. टॉप पे? हाँ, क्योंकि रिजल्ट का ये डे था, गैप अप करके ओपन हो गया था एकदम. रूल सबके लिए मैं एक बताना चाहूंगा, प्लीज अवॉइड बाइंग एक्सटेंडेड स्टॉक्स, ठीक है? एक्सटेंडेड स्टॉक्स बोले तो क्या है, अगर आप ये लो से ये हाई कनेक्ट करते हो, 77% आ चुका है, क्या ये आपको क्या मतलब, आप एक चीज में ना फोमो हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ. स्टार्ट बिलीविंग इन द सिस्टम. आप सिस्टम में बिलीव नहीं करो, दैट इज द रिजल्ट. यू आर बिहेविंग द वे every retailers are behaving, okay? Not, I'm not counting you or saying any kind of offensives, but the things are that the psychology has to be changed. Doing course does not mean you are successful in that. Just the point is that you have to be aware. Situation awareness होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस टाइम पे एक्ट करना है आपको. आप इस टाइम पे एक्ट कर देते तो चल जाता था मेरे को कि हाँ चलो छोटा लॉस है तो बैठे रहो, बट नाउ इफ यू से कि 300 रुपीज की आपकी बाइंग है, आप ये 30% का लॉस बेयर कर रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअली सर, आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बजट कि एग्रीकल्चर में फंडिंग आई थी, तो ये मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट अप मतलब गैप अप होके ओपन हुआ है तो इट विल गो अप, बट ये जैसे फॉल हो रहा है. सिस्टम तो बताने दो, सिस्टम फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है वीकली, ओके?
This is first breakout on daily also. Even this is like अगर आप ये इसको first मैं इसको count नहीं कर रहा हूँ, the reason being it's still a base. तो base के बाद आपको first और second count करना है. Got it? Agree? Agreed. Next, एक्सटेंडेड मूव नहीं बाय करने. अपने आपको आज जाके ना एकदम बड़े से लाइन में ना ऐसा प्रिंट करवा लेना, एक्सटेंडेड मूव बाय नहीं करूंगी करके. वो अपने जहाँ पे लैपटॉप या जहाँ भी आप बैठते होंगे उसके सामने लगवा दो. मतलब बिकॉज लाइक ये देखो, ये मेरा मतलब दिस इज माय लैपटॉप, बट द ओथ दैट आई गेस पहले दिया गया था मेरे ख्याल से आपको, तो ये मैं अपने लगा के रखा हूँ कि माय स्टॉप लॉस इज माय गार्ड, ऑलवेज आई विल रिस्पेक्ट इट. ठीक है, मार्केट इज लाइक अ बिजनेस एनी अदर, नॉट ऑल मंथ्स विल बी प्रॉफिटेबल. I'll not lose patience, build my patience level stronger with time. My setup is best. I'm going to be a best trader, and these are the things that are helping me. कोई नहीं, बट ये सुमित सर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही था, बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व द थिंग्स हैव चेंज सो मच. मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिस दिन 800 पॉइंट का फॉल था ना, मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा था उस दिन. दैट वाज द लेवल ऑफ पेशेंस दैट आई बिल्ड. बट ये ऐसा नहीं आएगा, आप सिस्टम पे ध्यान दोगे तो आएगा. This is a learning for me. Like I'm learning from this my failure. मतलब ये fail काफी drastically हुआ है, तो चलो एक I'll आप keep in mind. सर गलत एंट्री हो भी जाती है ना, एक सेकंड प्लीज. अगर कहीं पे गलत भी एंट्री हो जाती है ना, मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ. 10 से कितना दूर था ये? आप एक बात बताओ, 303 पे लेने के 300 रुपए पे लेने के बाद भी अगर आप ये 24% का लॉस बेयर कर सकते थे क्या? नहीं राइट. तो अब जिस कैंडल पे आपने लिया, उसी कैंडल का लो चला गया है, तो आपको नहीं लग रहा है एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है? अगर आप इतना सा लॉस लेके चले जाते तो आपको इतना बड़ा टेंशन नहीं होता. Yes, and that time we were not so attentive कि stop loss को इतना कोई serious. बात नहीं, ये लेसन सबके लिए, आपके लिए भी है, सबके लिए भी हाँ, है. मेरे लिए lesson है, right? थिंग्स आर नाउ सपोज टू बी लाइक कि अब अवेयर में आ जाओ, बिकॉज इफ यू आर नॉट दैट अवेयर, तो एग्री, नो डाउट एग्रीकल्चर था सबको, मेरे खुद के भी रेडार में आ चुका था ये स्टॉक. मैं खुद मिस कर चुका था कि 20%, स्टिल मैंने बाय नहीं किया. सर इसका मंथली देखेंगे एक बार. आई मीन बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो भी लाइक इनका क्वेश्चन था. आई मीन जैसे अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमको लगता है, अभी आप देखो ऐसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पे, राइट, ये वाला. आई मीन पुट दैट क्या नाम है, सॉरी यस बोलिए. ब्रेकआउट नहीं हुआ है वो अभी तक मंथली. करेक्ट. बट यहाँ पे हमें ये देख के नहीं लग रहा कि जॉनी लीवर बना रहा हो, जैसे 10 EMA like is touching and then it might, I mean like whatever has happened. I'm just suppose I'm checking this stock, right? So it's kind of like trying to make Johnny Lever pattern on that. एग्री. मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा करके, ठीक है. मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा, कब जाएगा ये प्रॉब्लम है. नहीं, सपोज आई एम एट ऑन दैट थे जो जुलाई वाला मंथ वाला जो छोटा सा ब्लैक कैंडल है, राइट. इफ यू सी आई एम देयर, आई एम सिटिंग देयर, आई एम जस्ट assuming, right? I mean like just for learning purpose, not about this particular stock, right? So I mean this stock is kind of forming Johnny Lever pattern and हाँ, ये इधर वाला छोटा वाला जो ये वाला, हाँ इसके बगल वाला, हाँ ये देखिए सर. तो यहाँ पे एकदम 10 EMA टच कर रहा है और फिर जब हाँ, आपका बात सही है, ठीक है. तो आपके हिसाब से एंट्री कहाँ पे होना चाहिए था? 190, जहाँ पे 10 MI. हाँ हाँ बरोबर. और आपका स्टॉप लॉस भी कितना होता उसके बाद, अगर आप काउंट भी करते हो तो आइडियली 10, 13. हाँ, जो ब्लैक का जो लो होगा, ब्लैक का जो बस करेक्ट. यही हुआ, कंसोलिडेशन का लो हो गया. ओके. हाँ सर, एक जेनरिक क्वेश्चन है. जैसे हमें अगर ब्रेकआउट हो गया तो हमें ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत नहीं बाई करना है, 2-3 दिन और कैंडल को वेट करना है, ऐसा वेट करो. हाँ, करेक्ट ना? यस. जैसे इस केस में गलती क्या होगी, जैसे आपने बाई किया, बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर लाइक दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी. ब्रेकआउट हुआ, बाई किया हमने, तो हमें ब्रेकआउट के दिन ही नहीं बाई करना है. वी हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज कि ये जिद्दी फॉर्म कर रहा है या फिर लाइक इट इज फॉलिंग हम्बल. उसको ऑब्जर्व करने के बाद देन वी टेक डिसीजन, राइट? यस. अब तो आप ब्रेकआउट के हाउ मेनी डेज वी शुड वेट? आई मीन जैसे ब्रेकआउट हो गया 4 उसके डेज, 4-5 डेज. 4-5 डेज, राइट. बट कभी यस. कभी ऐसा होता है ब्रेकआउट हुआ 4-5 डेज में तो 30-40% बढ़ जाता है स्टॉक, तो देन वी विल लीव इट.
वो नीचे नहीं आएगा क्या? ओके। लॉजिकल। हाँ, एक बात तो बताओ, नीचे नहीं आएगा 20-30% जाने के बाद? अच्छा, ठीक है। तो हमें जब वो मतलब हम्बल बनाने के बाद जहाँ पे वो लाइक सपोर्ट लेगा, एट दैट पॉइंट वी कैन बाय, करेक्ट? यस। हम्बल अब हुआ या कुछ सिटी देखो, हुआ। ये ब्रेकआउट दे दिया, जी सर। ब्रेकआउट दे दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है, आया ना नीचे। So I will, my exactly question is this. I will not buy on that 18th of July. Is that right understanding? जो 18th July ब्रेकआउट दिया है, 18th जुलाई को बॉक्स ब्रेकआउट दिया, so I will जुलाई not go and buy on 18th July. Rather I will monitor for like maybe फॉर like फ्यू डेज। हाँ। आप सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करो, जब वो नीचे आ रहा है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत शायद कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा या कोई नहीं भी कर रहा होगा, किया होगा तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, सोच के कि नहीं बकवास है करके ऐसा। आइडियली रिटेलर्स जो साइकोलॉजी होती है ना, वो ऐसी होती है कि कोई मतलब हम सही भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कभी, तो हम बकवास सोच के छोड़ देते हैं उसको। बट एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, ठीक है। दूसरी बात, जब आ रहा था गिर रहा था, क्या वॉल्यूम दिख रही है क्या आपको यहाँ पे? दिख भी रही है क्या? जूम इन करने के बाद भी नहीं दिख रहा है सेलिंग में, ठीक है। तो जब ये फॉल आ रहा है ना 10 MA के पास पुल बैक, तो वॉल्यूम डेड हो जानी चाहिए, डेड, खत्म, बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए उधर पे, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये मैंने ट्रेड किया इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इवन इट वाज अ फर्स्ट ब्रेकआउट, बट द मूव्स एंड द वॉल्यूम्स वर एक्सटेंडेड, एंड ये यहाँ पे भले ही फर्स्ट ब्रेकआउट कर रहा था, बट एक हायर टाइम फ्रेम पे सेकंड ब्रेकआउट कर रहा था कहीं पे। So that was the reason I bought here, and just sit आराम से। तो आइडियली अगर आप, और एक चीज बताऊंगा कि अगर आप 10 MA से फेल हो रहा है ना, तो 20 MA के नीचे एग्जिट कर जाओ, 6% लॉस। अब इतना बड़ा नहीं ले सकते तो बेटर एक, देखो एंट्री लेने के बाद है ना, आपका काम रिस्क मैनेज करना होता है। राइट सर। बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज सेकेंडरी थिंग, बट बीइंग अ रिस्क मैनेजर इज द फर्स्ट थिंग। आपके घर पे अपनी मम्मी भी तो होती है ना, वो यही काम करती है, पापा सैलरी लेकर आते हैं, मम्मी होती है, भले आपके पापा की 10,000 भी सैलरी होगी ना, वो 3,000 में पूरा राशन लेकर आएगी, कैसे तो भी बार्गेन करके 7,000 बचा लेगी। इमरजेंसी के टाइम पे ये होगा कि आपकी मम्मी पैसा निकालेगी पप्पा से ज्यादा। ये चीज हुआ था ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन टाइम मेरे Yeah, घर। that's true. That's true. तो दैट इज द थिंग, अपने अपने जो आसपास के रिजल्ट है उससे सीखो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो कितना परसेंट प्रॉफिट लेके बैठे हुए। सर इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस एग्रीटेक में बस यही डिफरेंस था कि जो फॉल आया था उसमें एग्रीटेक में वॉल्यूम था काफी, और इंडिया सीमेंट में जो ये फॉल है इसमें वॉल्यूम नहीं है। लेकिन दोनों ही आपको नहीं लगता 10 EMA के टच होते हुए फिर वापस से बाउंस करेंगे? देखो वहां पे तो किया नहीं, मुझे पता था, बट मेरा 6% का लॉस था, मुझे पता था। यहाँ पे भी अगर एग्री में भी मैं लेता ना, तो But, एग्री में पहले मैं देखने but वाला। just be honest. Like, I have one more question. I mean, just a kind of related question only. Sometimes what happens, like in a humble pattern, right? Even the loss, I mean, while falling, volume will be high. I mean, जिद्दी में volume कम होता है, but like in humble pattern, sometimes volume will be high. So I mean, I think we can ignore that high volume thing, right? यस, कोई हाई वॉल्यूम से सेलिंग आ रही है तो उसको इग्नोर करो। द रीजन इज, आपको नहीं पता ना कि आपके बाय करने के बाद एक ही बड़ा कैंडल दे दे तो खत्म। सेलिंग आ रही है मतलब सेलर एक्टिव है। Ignore karna means that's negative you are saying. I mean, there are two things. I mean, what I have observed so far. I mean, I may be wrong. Please correct me. If it is jiddi pattern, then while falling, I mean consolidating, volume will be very less. But while it is like humble pattern, volume sometimes it is less, but sometimes even it is higher also. But still, stock perform does good well. So is that right understanding या गलत? आपको मैं दो चीज बताता हूँ, ठीक है। एक स्टॉक है, दोनों भी स्टॉक है, ठीक है ना। तो ओके, तो आइडियली स्टॉक्स क्या करेंगे, मेरे को एक लॉजिकल बातें बताओ। एक तो जिद्दी बनाएगा, जी सर। दूसरा हम्बल बनाएगा, ठीक है। तो हम्बल बनाया, कोई भी बनाया, कुछ भी गया, ठीक है ना। तो आइडियली इस पीरियड के टाइम पे है ना, द वॉल्यूम शुड ड्राई डाउन लाइक दिस। सेलिंग में वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक जीआरसी का भी मैंने मेरे ख्याल से बताया, किसी ने ऑब्जर्व किया है या नहीं मुझे नहीं पता। एग्रीड सर, एग्रीड। पॉइंट ये, नोट। ये दोनों में है ना वॉल्यूम डेड हो जाने चाहिए, या तो फिर जो एवरेज लाइन जो चलती है ना वो ऐसे कुछ, ठीक है ना, तो वो एवरेज लाइन के नीचे चले जाने चाहिए। 20 वाला लाइन की नीचे जाएंगे। 20 हो 9 हो, आइडियली 9 बोला जाता है, बट ओके। मैं 20 रखता हूँ फॉर माई ओन कन्वीनियंस, ठीक है। तो मैं 20 रखता हूँ। द रीजन इज, अगर 20 से ज्यादा आ रहा है मतलब कोई बहुत बड़ा ही बाय कर रहा है उसको,
ठीक है। सो Okay. आइडियली ये होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने दो यहाँ पे। Okay. या तो अगर 10M आए ना यहाँ पे, मैं मानता हूँ कि ये 10M आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे 10M आ गया, ओके, अपन काउंट करते हैं इसका, कलर रखते हैं ग्रीन, अपने को ग्रीन ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो अभी काउंट करते हैं अपन कि ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है, यहाँ पे जो था प्रीवियस डे हाई था, ये जो एरो है, ठीक है। अब अगर स्टॉक इस पॉइंट के ऊपर जाने लगता है तब आप एंट्री ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, हाई तो ब्रेक होने दो, ऐसे करो कुछ। हम्म। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, 5-6% जाएगा ज्यादा जाएगा, एग्री? Stop loss वाला सर जैसे ऐसा है, like I mean as Sumit sir also says, I generally don't put it in advance कि मतलब stop loss रखो, क्योंकि like होता क्या है, like I mean the market players what they will do, right? I mean जो भी आपका सपोर्ट होगा उसको 2-3% नीचे ले जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वहां पे फिर वहां से फिर बाउंस कर जाएगा। तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, I mean theoretically it is fine, but like I mean थोड़ा सा और नीचे, I mean you are getting my point what I'm saying, यस right? यस यस, एग्री। वो स्टॉप लॉस सिस्टम में दिखता है बड़े लोग को, और इसलिए वो हिट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगा के रखोगे, जीटीटी वगैरह लगा के रखोगे, तो हिट ही हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगा जो। यस। सर आप कब लगाते हैं स्टॉप लॉस? ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया, फिर 4 दिन बाद लगाते हैं, थर्ड डे व्हेन यू मार्क द स्टॉप लॉस? मैं ऐसे स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता, आई ओनली प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि टॉल ब्रोज में मैं बताता हूँ आपको, अभी एक सामने लाइव एग्जांपल अपन ने चार्ट डिस्कस कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे कि इफ यू सी, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, दिस वाज माय स्टॉप लॉस, ओके, बट एज आई सो ऊपर तो गया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई, बट अगेन द कैंडल इज फ्रॉम दिस लेवल, दैट इज अ नेगेटिव कैंडल हियर, पूरी तरह से कवर कर लिया, वॉल्यूम नहीं थे नो डाउट, बट अगेन व्हाट आई सॉ, इवेंट भी है एक, तो व्हाई टू रिस्क माय कैपिटल, डेस्पाइट मेरा लॉस कितना है यहाँ पे, इट इज जस्ट 8%, मैं ले सकता था 8% का डेंट, बट मुझे नीचे कि वो 8% भी मुझे लगे। आफ्टर एंटरिंग आई जस्ट सी कि वो करना क्या चाहता है, 10 MA था, बुलिश कैंडल भी बनी थी। अब बस एक बात आ गई थी कि ये जो 2 कैंडल क्लोज आ गई ना, जिस दिन गैप डाउन ओपन हो गया था, ये था कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस करके निकल जाता ना, इसका हाई कर जाता ऊपर क्रॉस, तो मैं इसको पीरियडिक में ऐड कर देता, क्योंकि लिए वीकली सेकंड ब्रेकआउट हो जाता। दिस वाज फर्स्ट ब्रेकआउट, 4 हफ्ता रुका, अपने जो टूल है उसमें ना, इसका जो ये है इनपुट, वो 5 रखा है, तो 5 जो कैंडल्स आएंगे ना, उसके बाद ही ये बॉक्स बनना चालू करता है, ठीक है ना। तो 5वां हफ्ता आएगा, और अगर समझो कि वो ब्रेकआउट देते थे, तब मैं उसमें बाय करूंगा, कि बिकॉज आई वांट मोमेंटम। मैं सालों साल सड़ नहीं सकता इसमें, भले ही इसने बहुत बड़ा बेच दे दिया, एग्री सर, एग्री। ठीक But है। as for this particular stock, it looks like in weekly it is making Johnny Lever kind of. I mean, करने दो, मैं वेट करूंगा, भले अभी मैंने मेरा पैसा कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है, एक कुछ 0.3% का लॉस हुआ मुझे, ठीक है ना, मेरी एंट्री से, तो 57 पे निकला हूं मैं, 59 की मेरी बाइंग थी, 359 की। तो so now what you will take, ये वीकली पे जिस दिन बॉक्स ब्रेकआउट बना के एक बड़ा सा कैंडल, I mean, बनाएगा जब से कैंडल बनाएगा, देन Yes. डेली यू विल चेक, और डेली पे जहाँ पे राइट पॉइंट रहेगा वहां पे आप एंट्री लोगे, इज दैट राइट? यस यस, क्लियर हुआ डाउट? किसका डाउट है? प्रीति? यस सर। सर मुझे अभी भी मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ में नहीं आते हैं। आप बिगिनर थे तब शायद आपको भी नहीं आ रहे होंगे, बट ये कैसे आपने डेवलप किया? मोमेंटम कैसे हम लाएं? कौन से वाले, मतलब जैसे मुझे सिलेक्शन आ रहा है स्टॉक का, देखो, लेकिन बहुत सारे लोग मोमेंटम पकड़ में नहीं आ रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन में बहुत सारे लोग को तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो आई सी, मतलब एक जस्ट एक बात बताना चाहूंगा, मतलब नॉर्मल चीज, कि मैंने एक ये तो मेरा बहुत पहले का अकाउंट है, तो पेड था पहले, तो वो, तो उसके वजह से मेरे को वॉच लिस्ट की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। तो व्हाट आई डू इज, आप ये ब्रोकर अपने ब्रोकर ऐप में भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आई फर्स्ट सी इज, पहले तो मैं निफ्टी को देखता हूँ कि क्या कर रहा है निफ्टी, ठीक है ना। तो आइडियली अगर आप देखने जाओ तो निफ्टी एक अच्छा साइडवे स्ट्रक्चर करेक्शन में जाना चाहता है। आफ्टर अ ग्रेट रैली ऑफ 3800 पॉइंट, इट हैज जस्ट फेल्ट अराउंड 1200 पॉइंट सो फार, ओके। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा फॉल है, या फिर मतलब बस तरीका है ना गिराने का, थोड़ा खतरनाक था बस। भाई रिट्रेसमेंट देनी है तो अच्छे से दे देते, ऐसा था कहने का मतलब, ठीक है। अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि ये फॉल खत्म हो गया है, कुछ करना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है मार्केट, बिकॉज मार्केट एक दिन में गिरने के बाद अगर ये रिकवर करता ना तो अच्छा होता। ये जहां पे ऐसा हुआ ना, ये बहुत अच्छा फॉल दिया और तुरंत रिकवर कर दिया 2 दिन में। ये 2 दिन में रिकवर नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी हियर, ठीक है।
दूसरी बात, अगर आप देखो मार्केट में क्या चल रहा है, अगर फिबोनाची हम हाई लो को कनेक्ट करें तो इट हैज जस्ट टेकन सपोर्ट, अब ये क्रॉस नहीं हुआ ऊपर, ठीक है, अगर ये क्रॉस नहीं हुआ तो ट्रेंड इज लिटिल वीक, मतलब 23 वाला वीक है थोड़ा, तो आइडियली अपने लिए सपोर्ट क्या होना चाहिए, दीज टू साइकोलॉजिकल लेवल, और 23,574 इज माई सपोर्ट लेवल, जहां पे मैं एंट्री, मतलब मार्केट को मैं स्ट्रॉन्ग काउंट करता हूँ, और अगर वो 22,600 के नीचे चले जाता है तो मैं तो फिर भूल जाऊंगा कि मार्केट ऊपर रिकवर। Sir, we are not getting your volume, I guess. मुंह दुख रहा है, एक सेकेंड ना, लोड हो रहा है। आश्चर्य है क्या, आश्चर्य? नहीं है, ओके। तो इफ यू सी, ये पूरा एंटायर मूव था उसका 60% रिकवर हो गया था, ठीक है ना, रिट्रेस किया था यहाँ पे, तो ओके नाउ इफ यू सी 60, सॉरी नॉट दिस मूव 60, इस पूरे बुल रन का इसने 60% रिट्रेस कर लिया था, अगर आप देखो तो ऊपर जाने के लिए फिर दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इवन अगर आप देखो तो निफ्टी में ये लो था और यहाँ पे वो बुल रन खत्म हुआ था, तो ये आया था आइडियली इस पॉइंट पे, तो दिस इज द रीजन कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो जो रैली में है, ठीक है ना, जो पहले 2020 बॉटम से जो रैली आई थी, आई गेस दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, तो ओके, सो आइडियली इस पॉइंट से आके रिवर्स हो गया था, दैट मीन्स दैट इज वाई द रीजन वॉज कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा था। तो अभी सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर वो रिट्रेस 60% से करता है तो उसके लिए दिक्कत है फिर, ठीक है ना, जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो 23 आया है, अभी तक कोई बड़ा बुलिश कैंडल यहाँ पे बुलिश पैटर्न भी स्पॉट नहीं हुआ है, तो आइडियली मेरे लिए, अगर मेरे ख्याल से मैंने एक बार अभी शेयर भी किया था आप लोग के साथ, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ से अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो स्ट्रांगली यहाँ से रिवर्स हो सकता है, होना होगा तो मतलब ये पॉइंट भी टच कर सकता है और यहाँ से जाए ऐसा, ठीक है। सो अब मैंने सबसे पहले निफ्टी का हाल देख लिया कि क्या है, तो निफ्टी बेहाल चल रहा है। दूसरी बात, निफ्टी बेहाल चलने के बाद मैं देखूंगा कि कौन सा सेक्टर है जो जिसके हाल अच्छे चल रहे हैं, तो आई सी बैंक निफ्टी क्लियरली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस, अवॉइड, इग्नोर, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल निफ्टी भी इग्नोर, आपको दिख रहा है ना क्लियर कि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, एंड दैट इज द रीजन आई एम इग्नोरिंग इट, ठीक है। प्राइस एक्शन भी अपने आप में एक पार्ट है, ठीक है, उसको रीड करना भी, अगर आप देखो तो लोअर हाई लोअर लोस बनाते जा रहा है, तो जहां पे निफ्टी अप ट्रेंड में था और ये लोअर हाई लोअर लो एक महीने से बना रहे थे, अगर आप देखो ये डेट है ना, जुलाई 1 तारीख 11 तारीख के आसपास से नेगेटिव हो गए थे, तो स्टिल मतलब दैट मींस दीज आर द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मेंस सो फार नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स भी कुछ लोअर हाई लोअर लो बना रहे, इवन मेटल्स इज हैविंग दिस पर्टिकुलर गैप, तो मैं गैप के अगर ऊपर एक कैंडल चला जाएगा तो आई विल बी बुलिश, तो मैं इसको भी काउंट नहीं करूंगा फॉर द टाइम बीइंग। मिड कैप्स को थोड़ा सा रख सकते हैं बिकॉज इट हैज स्टार्टेड ट्राइंग टू फिल द गैप, फिर भी नहीं किया अभी, बट इसको भी मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि जिस दिन निफ्टी गिरा उस दिन इसमें भी इम्पैक्ट आया है। आइडियली ये भी एक साइडवेज जोन में चल रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों भी। इसको लेंगे बिकॉज प्रीवियस लो के नीचे चल रहा है, लेंगे क्या बताओ, मतलब आई एक्सपेक्ट इट लाइक ऐसा कुछ, बट फिर भी देखते हैं, तो मैं तो नहीं लूंगा। एफएमसीजी आई फील वेरी गुड बिकॉज इसमें गैप के साथ ओपनिंग नहीं हुई, ओके, एंड इट्स अ वीसीबी ब्रेकआउट, आई एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ मूव एंड रैली इन दैट, तो एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था तो इसमें बीकाजी लिया था मैंने, आईटीसी भी पड़ा हुआ है। अगेन एनर्जी थोड़ा ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा लंगड़ा हो गया है क्योंकि पिछले वीक के कैंडल के नीचे क्लोज कर चुका है, तो अगेन थोड़ा अवॉइड। फार्मा को बिल्कुल भी डेंट नहीं आया, तो अगेन आई एक्सपेक्ट इट टू गो हायर। मीडिया ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि गैप फिल कर दिया है, तो मीडिया को थोड़ा आउट परफॉर्मिंग मान सकते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग मेरे लिए फार्मा, डिफेंस, नॉट फार्मा, डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं, कमोडिटी भी नहीं। अब
ओवरऑल अगर कंक्लूजन पे आ जाते हैं अगर अपन सब सेक्टर देखने के बाद, तो सब में तो गैप है, सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी में नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत कुछ बड़ा सा मैंने एक छोटे में समेट लिया? एग्री? सर अब एफएमसीजी से बीकाजी कामा तक और चलिए आगे सर, वो हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एग्री। तो अभी अगर आप देखने जाओ तो एफएमसीजी देखते हैं। बीकाजी यहाँ पे नहीं है, बट इसमें मेरे पास आईटीसी था। आईटीसी इधर गया, आईटीसी नहीं मेरा। तो दिस वाज आईटीसी। ओके, दिस इज जस्ट लाइक सुमित सर बोलते हैं कि बेस बनाओ, तो बेस बना के ब्रेकआउट दिया था, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इनफैक्ट अगर आप देखने जाओ तो मंथली टाइम फ्रेम तो इसको फिर अप भी चल रहा है, ट्रेंड अप है। स्टेज 2 ही मानता हूँ मैं, और स्टेज 2 में फ्लैग एंड पोल बनाया है इसने। तो वन ऑफ द बेस्ट stock I count is ITC right now at the time being. ठीक है, तो ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। 10 एमआ के पास आएगा वीकली, तो आई एक्सपेक्ट मोर, बट 430 की बाइंग है मेरी यहाँ पे। तो मैं अभी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अ वे टू एनालाइज सेक्टर एंड देन अ स्टॉक। अगर आप कोई मतलब सेक्टर देखने के बाद कितना कुछ मेरे लिए क्लियर होगा कि मेरे को बाकी सब बकवास देखने का जरूरत नहीं है। सेक्टर अगर वीक है ना, सेक्टर लंगड़ा चल रहा है, तो फिर बाकी कितने भी घोड़े बन जाए, कुछ भी हो जाए स्टॉक्स, वो पूरी तरह नहीं भाग पाएंगे। सेलिंग कहीं ना कहीं आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी, परसों आ जाएगी या नेक्स्ट वीक आ जाएगी, पर आएगी जरूर, क्योंकि लाइक डेंट लग गया वहां पे। ठीक है, तो फॉर दिस वीक आई हैव इज एफएमसीजी एंड फार्मा। ओके, और उसमें भी फार्मा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस दिन 800 पॉइंट का फॉल आया था निफ्टी में, उसमें डेंट भी नहीं पड़ा था, और एफएमसीजी में थोड़ा सा पड़ा था, कुछ 0.3 का नेगेटिव था, 0.9 0.7 का कुछ नेगेटिव था तभी। तो एक ठीक है, बट एफएमसीजी भी फिलहाल के लिए स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो अब हर एक स्टॉक, हर एक सेक्टर स्टॉक, मतलब एक फार्मा में देख रहे हैं अपन, तो स्टॉक्स को देखते जाते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा लैगिश मूव दे रहा है। आफ्टर अ गुड स्ट्रॉन्ग मूव लैग हो रहा है थोड़ा, तो अवॉइड करूंगा मैं, बट इसको निकाल नहीं दूंगा अपनी वॉच लिस्ट से। इसको मैं जस्ट एक मार्क करके रखूंगा, ये बॉक्स के अंदर है, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे 10 एमआ से वीकली से बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया रहेगा। हाँ, परफेक्ट। और इवन ऑल टाइम हाई के पास भी है, ऑल टाइम हाई बना चुका है, तो थोड़ा अगर पिछले वाले जो रहेंगे वो बेच रहे होंगे, इसलिए ये कर रहा है। और एक चीज ऑब्जर्व करना, वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग एज द स्टॉक इज गोइंग हायर, एंड मूव भी देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इसको मैं अगेन इग्नोर मारूंगा, भले इसने बहुत अच्छा मूव दिया रहेगा पहले। ओके, वीबीएल रिजल्ट खराब थे मेरे ख्याल से, इसलिए कुछ इसमें बहुत बड़ा डेंट आया, इसको भी इग्नोर मारूंगा। टाटा कंज्यूमर आफ्टर ए गुड बेस है, देखो फॉल आया, बेस बनाया, ठीक है, और बेस विद गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया। थोड़ा दिक्कत है कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहे थे व्हेन इट वाज नियर 10 एम, तो अगेन इसको भी थोड़ा फिल्टर मार देंगे। सेक्टर में भी बेस्ट ढूंढना है फिर। इसने तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो इसको क्लियरली इग्नोर मारने जैसा ही है। अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर स्ट्रॉन्ग खड़ा था इवन इन दिस मार्केट, तो शैले से निफ्टी जो आने लगा है अभी, मतलब आफ्टर इलेक्शन निफ्टी, एफएमसीजी और आईटी और फार्मा चलने लगे थे, तो मैं इनको ही देखना चालू करूंगा अभी, है ना। इवन आईटीसी तो ऑलरेडी रडार में है, होल्डिंग भी है, फिर एफएमसीजी खुद सेक्टर है, मतलब दिस इज हाउ आई फिल्टर। अब इसमें दिखाता हूँ बीकाजी क्यों लिया था मैंने। बीकाजी नहीं, बीकाजी। ओके, तो जिस दिन फॉल आया था ना, उस दिन मतलब मैं बताता हूँ कि आफ्टर गुड मूव, दिस इज इफ यू सी, इट्स अ गुड स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है ना, अगर आप इसको काउंट नहीं करते हैं तो इसको भी काउंट कर सकते हैं अपन। शॉर्ट टर्म में 40% का रिटर्न दे दिया था। ओके, नेक्स्ट आई सी एफएमसीजी, मेरे को स्टॉक लग रहा था स्ट्रॉन्ग है करके, सॉरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे, एंड व्हाट आई सॉ वाज नॉट लाइक, वहां पे भी था, सेकंड ब्रेकआउट मिल रहा था ऑन आर्ली, आई वेंट ऑन लाइक तो आई सॉ कि 740 की मेरी बाइंग थी, जो सर बोलते हैं कि सेकंड हाफ में बाय करना, तो ये बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ आई थी और गिर रहा था, तो इट इज जस्ट आर्ली वॉल्यूम,
तो डेली पे मुझे कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं लग रहा था। जिस दिन बहुत बड़ा फॉल आया था ये मेरे लो के नीचे चला गया था, एंड वी वर जस्ट हैविंग 6% लॉस एट दिस टाइम, लाइक हम हमारा 6% मैक्स लॉस रखेंगे, बीका जी यहाँ पे दिखेगा। ओके, इफ यू सी हियर मैंने पूरा बना के रखा था कि 6%, 5.7872% तक आ गया था, बट स्टिल मैंने नहीं बेचा था। देखो परफेक्ट आ चुका था कि भाई लेके जाएगा करके, पर मेरा था कि क्लोजिंग अगर इसके नीचे होता तो बेच दूंगा करके, फिर भी होल्ड कर रहा था, एंड वी गॉट रिवॉर्डेड बाय 19%। स्टिल अभी थोड़ा नेगेटिव है तो मैं बेचूंगा नहीं, अभी नेगेटिव है मतलब बेचूंगा नहीं, ठीक है। अब मैं मैनेज करूंगा रिस्क, ठीक। मैं कुछ 30% क्वांटिटी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 862 के आसपास, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई फिल्टर सेक्टर्स एंड देन स्टॉक्स। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे इससे टेक्सटाइल का तो कोई है ही नहीं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो समझो कि अभी अपन रूपा को देख लेते हैं, तो ठीक है, रूपा रूपा पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब रूपा को, अरे बीका जी क्यों आ रहा है भाई, हाँ रूपा। अब रूपा आ गए तो यहाँ पे जानने का सिंपली जो भी टेक्सटाइल सेक्टर की स्टॉक्स हैं तो उसको समझो कि रेमंड्स है, तो रेमंड्स प्लस करके रेमंड्स ऐड कर दिया, फिर इसके बाद प्लस कर लो और नाम बोलते जाओ, लंबोदर है, ठीक है। देन अगेन वी हैव इज वेलस्पन लिविंग, नितिन वेलस्पन लिविंग है। फिर मतलब समझो कि ऐसे ही कुछ स्टॉक है, ठीक है ना। अभी अपन ने 3-4 को ऐसे कर लिया और अपन ने बना दिया, तो अपन खुद अपना एक इंडेक्स बना सकते हैं कि देखो क्या हो रहा है। बस एक चीज है इसमें, एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत हाई प्राइस का लोग है ना, अगर समझो कि अभी जैसे कि रेमंड से कुछ 2100 पे चल रहा है और वेल्सपन चल रहा है 190 के आसपास, तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ऐसा दिखेगा ऊपर नीचे का, ठीक है। तो सर ऐसे में क्या ये एवरेज करके जैसे हमने 4-5 स्टॉक डाले, 4-5 का एवरेज लेके करता है, कैसे करता है ये? आई मीन व्हाट हाँ, इज? उनका ही एवरेज करता है वो। ओके ओके। तो अब मुझे ऐसा दिख गया कि कुछ है, तो मतलब एक अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज को आप देखो जो आपको लग रहा है ऐसा कि ऐसे आ रहा है करके, तो ऐसे ही केमिकल्स का भी आप कर सकते हो। एंड आइडियली आप ये सब चीजें तो बहुत मतलब आराम से ट्रैक कर लोगे। बहुत सारे लोग को जो सेक्टर्स में अगर आपका ये आता है दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अभी के लिए स्टॉक फॉर द टाइम बिंग ऐसा कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, लास्ट में कुछ अच्छी वॉल्यूम आई, तो बिकॉज ऑफ हैवी सेलिंग उस वजह से आई है मार्केट में जो चल रही थी, लंबोदर काउंट किया इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अब अपने बेस्ट सेटअप को देखो इसमें, ठीक है ना। बेस्ट सेटअप को इसके अंदर डालना, ओके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कंपनी को उठा लेना और डाल दो, जो बेस्ट सेटअप दिखेंगे ना उसको डालना। बिकॉज रूपा जो चल रहा है, अगर आप रूपा को देखो तो रूपा चल रहा है एक्यूमुलेशन से सेकेंड स्टेज 2 पे आ रहा है, बरोबर। आई लाइक, हाँ ये देखो, दिस इज स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1 और स्टेज 2 में जा रहा है, ठीक है ना। द वॉल्यूम्स आर किकिंग इन राइट नाउ। मैं अभी भी नहीं खरीदूंगा, मैं इसके ऊपर खरीदूंगा, ठीक है ना। भले महंगा खरीदूं बट नहीं खरीदूंगा, ऐसा है रूल है, बस उसका अपन कुछ करेंगे नहीं। तो रूल अभी इसमें स्टेज 2 में चल रहा है, वेर अगर रेमंड्स को देखने जाओ तो ऑलरेडी वो लीडर है। अब ये भी ढूंढना है आपको कि लीडर कौन सा है, लेगार्ड कौन सा है, ठीक है। सो दिस वाज माय एंट्री एज पर सेकंड बॉक्स ब्रेकआउट इन अप्रैल। दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड। तो अब अगर आप देखो तो रेमंड्स और जो अपन ने चार्ट बनाया था सिमिलर दिख रहे थे दोनों भी, है ना। तो दिस इज द थिंग कि बड़ा है प्राइस वाइज, तो इसलिए वो ऐसा दिखा रहा है। सर अगर एक मिनट, एक बार रूपा पे जाएंगे। आपने क्यों बोला क्यों नहीं लेंगे? आई मीन वो ब्रेकआउट करके लाइक इट इज एट सपोर्ट। हम्म, मुझे फॉलो थ्रू बाइंग चाहिए ना। ये क्या, ये कैंडल को डुबाने के लिए तो मैं अभी तुरंत डुबा दूं, बट इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ ना कहीं पे भी। फर्स्ट ब्रेकआउट होगा मेरे ख्याल से, देख लेना। ओके ओके। ब्रेकआउट की यहाँ पे मतलब रूल की बात करें तो हमने रूल का ये है कि हमने ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमें 4-5 दिन वेट करना है। तो जो 4-5 दिन वेट किया, फॉलो थ्रू कैंडल्स नहीं आए, इसलिए वी हाँ, विल नॉट बाई, करेक्ट ना? यस। और इवन वीकली देखो तो वीकली पे मतलब आइडियली बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, बट ये जो रेजिस्टेंस है उसको रोक रहे हैं, तो मैं कंसोलिडेशन में आइडियली नहीं फंसना चाहता, इसलिए। अंडरस्टूड सर। और एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ ना तो मेरा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है 10% का,
ठीक है, अब समझो कि ये यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो समझो कि एक यहाँ से जाता है, तो बहुत बड़ा, अभी समझो कि इस पॉइंट से रिवर्स हो रहा है, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं आ रहा है मेरे को, 8-1% का आ रहा है, विच इज बेरेबल। और इवन अगर देखने जाओ तो ये कुछ फ्लैग एंड हो जाएगा ना वापस, जिद्दी हो गया वैसे तो। करेक्ट। तो उस हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया रखता हूँ, और ऊपर से ये स्टेज 2 में अभी एंटर होने जा रहा है, तो एंटर का क्या है, फर्स्ट अभी तो पहली बार ही आया है ऐसे, तो मैं अभी को जाने देते हैं ना, और एक बार जाएगा तो और ऊपर तेजी से निकालेगा, जब निकालेगा तो। आई मीन यहाँ पे मेन रोल जो हमें यहाँ ब्रेक हुआ कि हमें ब्रेकआउट कैंडल मिला, मे बी बॉक्स ब्रेकआउट भी हुआ रहा होगा, वो जो बड़ा वाला कैंडल है, बट आफ्टर दैट आई डिड नॉट गेट द फॉलो थ्रू कैंडल्स, 4-5 फॉलो थ्रू कैंडल्स, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बाय। नॉट बाय। फिर एक GHCL टेक्सटाइल था, तो इसमें देखो, इसमें हुआ ना वो फॉलो थ्रू ऐसे, मतलब ये ऐसा सेटअप चाहिए मुझे कि जिसमें मेरी लॉस भी अगर देखो तो 6% का लॉस है, वेरएज अगर मैं इसमें बाय करता, ठीक है, अगर इसमें बाय कर लेता मैं, तो ये क्या आइडियली मेरे को 12% का दे रहा है, बट अगर मैं इसी चीज को अगर मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट के पास ले लो, तो 8-1% का लॉस है, तो आप इवेंचुअली क्या, आप यहाँ पे एंटर करने के बाद आप अपना लॉस मैनेज करने वाले हो ना, वही होगा। और 10 MA देख लेते हैं, 10 MA आया होगा, लो और भी अच्छी बात, फिर तो 10 MA से ले लिया और 20 MA का स्टॉप लॉस रख दिया, तो 5-6% का रख दिया बस। तो यहाँ पे सर जो ग्रीन वाला कैंडल, जो ब्लैक वाला कैंडल आ रहा है, वहां बाय तो भी नहीं बनता, बाय कैसे बनेगा, बाय रूल यहाँ चाहिए। पे इधर पे बाय, I mean, because John Lever, 10 MI is touching that one. That by that rule, दिस इज अ जिद्दी पैटर्न। Jiti is fine. I mean, like breakout हो गया, Jiti हो गया, then we will wait for next breakout, right? Then only we will buy, correct? यस, तो next breakout ideally कहाँ this है? is a base, so I do not just combine with the like I combine with the price action and the rules, हम्म जितना मेरे फेवर में आता है मैं उनको पकड़ता हूँ, हम्म ठीक है। right, ठीक है सर। तो मेरे कुछ विनर्स थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, यू विल फाइंड गुड विद दिस, ठीक है। सो कोचिंग चिपियर और GRSC दोनों साथ में मिल गए थे, ठीक है। तो आइडियली व्हाट आई सॉ वाज पास्ट प्राइस बिहेवियर, कि हमेशा जब भी प्राइस स्टॉक भागता है तो 140% तो देता ही देता है, ठीक है। सो आइडियली आई गॉट दिस अराउंड अप्रैल विथ GRSC मिला था मुझे, ठीक है, GRSC और कोचिंग शिपयार्ड दोनों भी मिल गए थे। तो यहाँ पे कुछ मैंने 79% कुछ बुक किया था प्रॉफिट, सॉरी 89 वाज दिस, एंड GRSC में GRSC वाज वन सच वेर आई ऑलरेडी शोड यू कि 150% का रिटर्न मिला था। देन देयर वाज HG इंफ्रा 1142 की बाइंग थी मेरी, ओके, दिस वाज माय बाइंग ईयर 1142 वेर आई वाज गेटिंग 62%, बट आइडियली मैंने इस पॉइंट पे एग्जिट किया व्हेन देयर वाज 2 days बैक टू बैक क्लोजिंग बिलो 20 MA, तो आइडियली यहाँ पे भी मैंने 48%, बट अगर ये यहाँ से भी अगर जिद्दी बना के निकल जाता तो मैं, मतलब अच्छा निकाल सकता था, बट मैं वेट कर रहा था। तो वी कैन नॉट कैच एवरी टॉप एंड एवरी बॉटम, राइट। सो आफ्टर बेस दिस वाज फर्स्ट ब्रेकआउट एंड दिस वाज सेकंड ब्रेकआउट, तो दैट इज द रीजन। और मैं, मतलब मैं आपको एक चीज एक सीक्रेट बताऊंगा कि जितना बड़ा बेस है, आप बड़ा बेस ढूंढ के रखो, ठीक है। इवन आई हैव माई सेल्फ अ लिस्ट विच इज बिग बी एंड विच क्लियरली स्टेट्स दैट these are, ये अवंती है मेरे पास, अवंती फीड्स, दैट इज आई हैव फ्रॉम 758 लेवल, 759 लेवल्स। सर एक आरके फोर्ज है, 1 ईयर का बेस बन रहा है, आप एक बार चेक करेंगे उसे। यस यस, आरके फोर्ज के फोर्ज मंथली ब्रेकआउट है, वीकली फर्स्ट ब्रेकआउट हो चुका है, सेकंड बाकी है, डेली में भी फर्स्ट हुआ है, तो डेली और वीकली दोनों का एक साथ ही ब्रेकआउट होगा तो आइडियली इन दैट सिचुएशन मैं बोलूंगा कि वहां पे बाय करना, एक्सटेंडेड मूव बाय नहीं करने, इसलिए मैं इसको सेकंड ब्रेकआउट नहीं काउंट कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सेकंड ब्रेकआउट था सर, ओके।
सर एक छोटा सा अगर विक ही बन रह जाता है, मतलब ग्रीन बॉक्स के अबव, तो वो क्या ब्रेकआउट में काउंट होता है कि नहीं? नहीं, एक बात बताओ, कोई ऊपर तक लेके गया और उसको बेच दिया तो आप उसको क्यों काउंट करोगे? आपको एक बात बताता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम काउंट करने का आइडियली ब्रेकआउट पे, ठीक है? दैट इज द रीजन फॉर सक्सेस, बिकॉज अगर मतलब मैं कोई और स्टॉक नहीं बताऊंगा, बट मैं मेरे विनर्स को मैं ज्यादा करके बताऊंगा, बिकॉज विनर्स हैव अ लॉट टू लर्न, राइट? अब देखो, इससे पहले कभी भी वॉल्यूम नहीं आ रही थी इतनी बड़ी, है ना? फिर दूसरी बात है, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग खड़ी थी और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग खड़ी थी। जस्ट 10 से 12% का स्टॉप लॉस था आई गेस इस दिन। 10